Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. Today we will start from question number 34, retirement or death of a partner. The following was the balance sheet of Ram and Shyam as at 31st March 2020, page number 5.117. Ram retired from the business on 1st April 2020. Goodwill is to be valued at rupees 10,000. The patents were valueless. Plant and machinery is to be depreciated by 10%. Provision for doubtful debt 5% to be created on book debt. Assuming that these adjustments are duly carried out, show the capital account and balance sheet of Shyam after Ram has been paid off. Shyam borrows money from his bank on security of plant and machinery to pay off Ram. तो रिटायरमेंट, राम के रिटायरमेंट के बाद ओनली श्याम बचेगा इस बिजनेस के अंदर. तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसमें हम राम को पेमेंट दे देंगे पूरा, और अगर जो भी पैसा कम पड़ेगा वो श्याम बैंक से लोन ले लेगा. यानी कि हम जितना भी पेमेंट राम को देंगे बैंक से वो पूरा का पूरा लोन कहलाएगा और वो बैलेंस शीट में लोन के नाम से शो होगा. तो ठीक है, हम करते हैं इसको. इसमें ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो 1:1 होगा, यानी कि राम को सेक्रीफाइस होगा 1/2 और शाम को गेन होगा 1/2. तो सबसे पहले हम गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं. गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल. 10,000 मल्टीप्लाई 1/5, 1/2, it will be 5,000. अब इसमें रिजर्व है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, और नेट प्रॉफिट को भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब हम बनाने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बहुत सिंपल है, कोई खास चीज नहीं है इसमें, सिर्फ वो लोन वाली बात थी. पेटेंट आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट को हम रिमूव कर देंगे 2,000, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कम करना है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कम कर देंगे. और हमें एडिशनल प्रोविजन बनाना है. प्रोविजन पहले से नहीं था बैलेंस शीट में, हमें 5% क्रिएट करना है प्रोविजन. तो ये आएगा 4,000 का 5%, 200. इसको हम पार्टनर्स में दोनों में डिवाइड कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम एंड श्याम. इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम. और फिर राम को फाइनल पेमेंट करके जो भी पैसे कम पड़ेंगे वो लोन में हम शो कर देंगे. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर हैं राम एंड श्याम. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस. राम एंड श्याम का बैलेंस है 30,000 और 27,500. देन एंट्री फॉर गुडविल इज श्याम टू राम बाय श्याम. राम में अमाउंट आ जाएगा 5,000, टू राम श्याम में अमाउंट आ जाएगा 5,000 बाय रिजर्व equal distribution. Net profit is also given in balance sheet. It means it is not yet distributed, so we will distribute it in the old ratio. And there is loss on revaluation which we have just made, 3,600, 3,600. Now the balance of Ram will be paid. There is rupees 1,000 in balance sheet which we will pay to Ram. Now remaining amount of Ram will be paid by taking loan from bank. It will be 36,400.
and Shyam's balance will be calculated to balance CD. His balance will be 24,900. So this is the capital account of both the partners. Now, when you prepare balance sheet, you have to show this amount as loan on liability side. It will be shown as bank loan, 36,400. Rest all adjustments you have to do as usual. EPF creditors will be same, and Shyam's capital will be shown here. Shyam's capital 24,900. So this question is complete. You have to make balance sheet. Now we are going to do question number 39. Question number 39. On 31st March 2018, the balance sheet of A, B and C sharing profits in the proportion of fixed capital is given to you. Now, in this question, on 1st April, B wants to retire from the firm and remaining partner decided to carry on. The following readjustments of assets and liabilities have been agreed upon before the ascertainment of the amount payable to B. That out of the fire insurance premium paid during 2017-18, 10,000 B carried forward as unexpired. तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसको बाई साइड में शो करना है आपको. आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10% आ जाएगा उसमें 50,000. द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स का 5% आएगा 5,000 और पीएफडीडी पहले से दे रखा है आपको 2,000, तो 3,000 से पीएफडीडी इंक्रीज होगा. ये भी टू साइड में आएगा. मशीन बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% टू मशीनरी. प्रोविजन फॉर 15,000 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर. तो ये अपनी एडिशनल लायबिलिटी है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगी. टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर 15,000. तो ये अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से. इसका प्रॉफिट आएगा 30,000. उसको आपको इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है. ओल्ड रेशियो है 3:1. और न्यू रेशियो आपको दे रखा है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी. न्यू रेशियो है 3:1. Goodwill of the entire firm will be valued at 1,80,000 and B's share of the same adjusted in the accounts of A and C, who share future profits in the proportion of 3:1 respectively. B paid 50,000 in cash and balance to be transferred to his loan account. Now we will calculate the gaining and sacrificing ratio. Old ratio minus new ratio. So because old ratio and new ratio are same, so sacrifice ratio and gaining ratio will also be same. There was no need to calculate. It's okay if we want to calculate, we can calculate just for confirmation. So look here, gaining ratio is same as the old ratio because old ratio and new ratio are same. Okay, no problem in that. Now we will make journal entry for goodwill. Journal entry for goodwill will be A's capital account debit, C's capital account debit, to B's capital account.
क्योंकि बी को सेक्रीफाइस हो रहा है 2/6 और आपको गुडविल दे रखी है 1,80,000. So it will be 60,000, 45,000 and 15,000 because the 60,000 goodwill will be distributed in the gaining ratio. So this will be the journal entry. Now we will prepare partner's current account. We have 3 partners A, B and C. There is no current account in balance sheet, so there will be no opening capital, no opening balance. First of all, we will make posting. So in the entry also, you should use current account because this is fixed capital method. So all adjustments will go to current account and then capital account will be prepared. So by revaluation, $15,000, $10,000 and $5,000. Old ratio by general reserve 90,000, 60,000, 30,000. Old ratio 2. Now there is goodwill by A by C 45,000, 15,000. Now all the postings have been done. Now remember that whenever some partner retires, he will have no balance in current account. जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो हम उसका जो भी बैलेंस होगा करंट अकाउंट का उसको उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. तो यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है तो बी का जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम उसके कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे. उसका बैलेंस आएगा 1,30,000. 1,30,000 को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और बाकी के दोनों जो अपने पार्टनर हैं उनका हम बैलेंस निकाल देंगे 60,000 और 20,000. ये आपको बैलेंस शीट में शो करने हैं लायबिलिटी साइड में. ये हमारा है पार्टनर करंट अकाउंट. सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पोस्ट कर देंगे इसके अंदर, फिर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर गुडविल की एंट्री और उसके बाद यहाँ पर भी गुडविल की एंट्री. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो बैलेंस बचेगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि हम इसको फाइनल पेमेंट करना है और बाकी के दोनों पार्टनर का बैलेंस बच जाएगा जो कि आपको बैलेंस शीट में शो करना है. इसके बाद बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले हम इसमें बैलेंस लिखेंगे जो कि हमको बैलेंस शीट में गिवन है
3,60,000, 2,40,000 and 1,20,000. नाउ हमने करंट अकाउंट में से कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर किया था बी का, उसकी पोस्टिंग हो जाएगी यहाँ पर बाय बी करंट अकाउंट 1,30,000. और ए और सी में कोई पोस्टिंग नहीं आएगी क्योंकि ए और सी ने ना तो कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है ना कोई कैपिटल विड्रॉ करी है. आप लोगों को याद होगा फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन आता है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका करंट अकाउंट भी इसमें आ जाता है. अब हमको क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें 50,000 रुपीज कैश देना है बी को. तो हमारे पास बैंक में बैलेंस है तो हम बैंक से इसको पेमेंट दे देंगे 50,000, और जो बैलेंस बचेगा बी का उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो ये है 3,70,000. 370 में से 50,000 इसको मिल गए तो 3,20,000 इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो ए और सी का बैलेंस बचेगा वो हम लिख देंगे टू बैलेंस सी डी. ओके. अब आपको जब बैलेंस शीट बनानी है तो आप ध्यान रखेंगे बी लोन लायबिलिटी साइड में आएगा, ये दोनों कैपिटल लायबिलिटी साइड में आएंगे, और करंट अकाउंट के बैलेंस भी लायबिलिटी साइड में आएंगे क्योंकि उसमें भी क्रेडिट बैलेंस बच रहा था. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 40. इसकी बैलेंस शीट आपको बनानी है और क्वेश्चन नंबर 37, 38 आपको करने हैं होमवर्क में. मतलब आज आपका क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए कॉपी के अंदर. क्वेश्चन नंबर 40 तक, 40 भी मैं करवा रहा हूँ. आनंद, बिहारी एंड शिविन आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म. बिहारी retires and his claim including his capital and his share of goodwill is rupees 40,000. He is paid in kind. A vehicle valued at rupees 20,000 which is unrecorded in the books. Underline this point, it is unrecorded in the books. So whenever some vehicle is unrecorded and we are going to record that vehicle in the books, or we are using that vehicle in the business, then it will be recorded in the books and journal entry will be vehicle account debit to revaluation account. So when vehicle is unrecorded, we record the vehicle in the books, then we distributed the profit on revaluation between the partners in their old ratio, that is 1:1:1. Now we are making payment to B 20,000 in kind by providing him vehicle, and rest amount in cash 26,666. Okay, so this is the solution of question number 40. Today you have to do questions up to 40, and the next topic, adjustment of capital, has been removed from our syllabus. So from tomorrow onwards, we will study death of a partner. Okay? क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 57 तक आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं. उसमें आप एडजस्टमेंट वाले पॉइंट को इग्नोर कर दीजिएगा. हैव ए गुड डे. थैंक यू.